Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great. So today, of course, we are going to deal with the chapter Motion and Measurement of Distances for grade 6 and Motion and Time for grade 7. Means all in one, we are going to go beyond NCERT for grade 6 and science today in one session only. And basically this session is based on the topic motion. So if you are in any grade and you want to clear your basics of motion, then you have to watch this video. You need to watch this video, okay? And especially for grade 8 students, this is going to be really helpful. So you guys can also watch this one. And then without any further ado, let's begin. So hello guys, for those who don't know me, I am Jyoti Verma and I am here because I love to teach. Today we are going to go beyond NCERT for chapters Motion and Measurement of Distances and Motion and Time for grade 6 and for grade 7. This is our channel logo guys. So this is our channel logo, and one more thing, let me tell you that before beginning the session, please do not forget to hit on that like button and subscribe to my channel if you haven't done it yet. Now, okay, so guys, are you guys ready to go beyond NCERT with me? And if you guys think that you are ready to go beyond NCERT with me, and then do not forget to write me this in the comment section or the live chat flowing hashtag LGBN. What does hashtag LGBN mean? Hashtag LGBN means hashtag let's go beyond NCERT, and that's it. Now let us begin. So what are the learning points for this session? So first of all, introduction to motion and rest, because this is a very important topic. We need to clear our basics. So we will clear our basics. In this session, there are very important points, and this session is the best one for those points. The very first point is that we are going to first clear up with our basics NCERT, that is introduction to motion time. Then we are going to look at tricks. How can we remember things like formula, speed, distance and time? Not one trick, people. This time I don't have one trick for you. I have this time basically 2 tricks for you on this topic. दो tricks है मेरे पास आपके लिए. So second best thing about this session is कि इस session में tricks भी सीखेंगे. Third thing is that in this session we are going to cover the NCERT portion that we have already discussed. ठीक है. NCERT से आगे we are going to discuss, that is distance and displacement, the most important topics. That also we are going to discuss. ठीक है. Distance and displacement is the most important topic in this chapter. And then we are going to look at the overall learnings through a flow chart, and that is the 4th best thing about this session. And the 5th best thing is we are going to have in the end 2 questions to refresh yourself, and then we are going to end up with this session without doing any further delay. Now let us begin. Now, an object is said to be in motion or moving. What is motion, guys? Motion absolutely means that something is moving. Motion का एक सिंपल मतलब निकाल लो, moving. Motion का similar word जो होता है वो होता है moving. If something is moving, ठीक है, if any object is moving, then it is said to be in motion. It is said to be in motion. That's it. Or in a sense, when it comes to writing its definition, then you can write this: an object is said to be in motion or moving when it is changing its position with time, with reference to time, or with time it's changing its position. For example, when a car changes with time, we say that the car is moving or the car is in motion. Next one is, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to time with time. ठीक है. Means if something is there, it is sitting very properly at that particular place. It is not changing its position. It's not moving at all. That thing is going to say that is going to be said as it is at rest. Or this particular thing can be also said as that is stationary. ठीक है guys, I have a lot of time to all these words. Stationary. The word stationary can be also used at this particular moment. ठीक है. If something is in motion, ठीक है, if something is in motion, then that is going to be said as it's moving. And if something is at rest, that is going to be at stationary mode. Okay, that's it. Now guys, how can we remember the formula for speed, distance and time without learning? Actually by heart करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप याद करोगे बगैर by heart करे. How to do it? So seems like a magic. Let us try this here.
तो सबसे पहले यार स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की फॉर्मूला जो होती है ना, ये तो हमेशा याद रखना, ये तो कभी मत भूलना बच्चा पार्टी। इफ यू गाइस फॉरगेट दिस देन आई डोंट थिंक दैट इज गुड टू फॉरगेट, एटलीस्ट दिस फॉर्मूला शुड बी लाइक in your mind, speed is equal to distance upon time. Then distance is equal to speed into time, time is equal to distance by speed. If you don't remember these as well, it's okay, because I'm going to tell you trick, of course. So let me erase this quickly and then bring you guys the trick. So the very first trick is, I'm going to tell you two tricks, ठीक है। पहला trick क्या है जानते हो people? The very first trick is, you need to remember this formula, speed is equal to distance upon time। ये formula याद कर लो। Once you remember this formula, then what you have to do is, अच्छा speed अगर ये algebra पे based है, speed is equal to अगर distance upon time है, और फिर अगर आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना है कि टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, तो टाइम स्पीड की जगह पे जाएगा, टाइम इज गोइंग टू गो ऑन दिस प्लेस ऑफ स्पीड। तो टाइम अगर स्पीड की जगह पे जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू, तो स्पीड भी तो डिस्टेंस टाइम की जगह पे आएगा, मतलब दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। तो dy/s लिख लो, ये पहला हो गया। अब इसी तरह डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं एल्जेब्रा के यूज़ से, ठीक है। एल्जेब्रा वाला जो हमने इक्वेशंस का सीखा है, अगर नहीं सीखा तो सेकंड ट्रिक तो भाई वो तो बच्चा भी, मतलब एनीवन कैन एनालाइज द सेकंड ट्रिक। फर्स्ट थिंग थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, एल्जेब्रा में वीक हो तो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोजिंग का मेथड। सो अब यार ये स्पीड है, यहाँ पे आप डिस्टेंस ढूंढना है, तो जब डिस्टेंस यहाँ होगा तो ये टाइम है, तो टाइम ऐसे ही रह जाएगा, टाइम तो इनटू आपका स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये फॉर्मूला आपने निकाल ली कुछ इस तरह से। अब इस तरह से अगर आप नहीं निकाल पा रहे, इफ़ यू गाइस आरंट एबल टू टेक दिस फॉर्मूला आउट इन दिस वे हाउ आई हैव गिवन इट टू यू, तो चलिए एक और ट्रिक सीख लेते हैं इसके लिए, एंड दिस ट्रिक विल बी ऑफ कोर्स ईजियर कंपेरेटिवली। तो यार ये ट्रिक देख लो। ओके, सो लुक एट दिस ट्रिक। हियर आई हैव अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में सबसे पहले डिस्टेंस है, सेकेंड नंबर पे स्पीड है और टाइम है। आपको हमेशा याद रखना है कि दिस इज द DST ग्राफ, this is known as the DST graph, not of course, DST triangle, ठीक है। this is the DST triangle, मतलब डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम ट्राइंगल। अब यार इसमें सबसे ऊपर द किंग इज योर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी योर किंग, तो डिस्टेंस को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। नो गाइस, डिस्टेंस विल बी ऑन टॉप एंड स्पीड टाइम नीचे होगी। अब स्पीड और टाइम में आप क्या करना है, आपको सिंपली एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर आपको डिस्टेंस को रखना है और फिर स्पीड और टाइम को रख देना है नीचे। कैसे भी आप रख सकते हो, टाइम यहाँ रख दो, स्पीड यहाँ रख दो, या फिर स्पीड वहाँ रख दो, टाइम वहाँ रख दो। इसका क्या मतलब है जानते हो, कि डिस्टेंस जो है वो डिवीजन में है और स्पीड और टाइम है ना वो एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है, इसका ये मतलब है। चलो मैं इन क्लियर करके दिखा दूँ। जो डिस्टेंस है वो डिवीजन में है, स्पीड और टाइम है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इससे ये पता चलता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बोलता है कि स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच, स्पीड का फॉर्मूला निकालने को बोल रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम रहा तो d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कोई बोल रहा है यार आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और टाइम इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम लिख देते हैं। तो चलिए मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। ये सिंपल। अब यार आप कोई बोल रहा है टाइम का फॉर्मूला बताओ हमको, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कैसे हो जाएगा यार, टाइम अगर निकाल दे तो ये दो फॉर्मूलाज रह गए, ये दो टर्म्स रह गए, बस सेम था, ट्रिक था। नाउ गाइस लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है बच्चा पाती, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो गाइस ये सिर्फ यही मोशन के टाइप से और भी होते हैं ऑफ कोर्स, बट दिस आर द मेजर टाइप्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन टुडे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक। तो इसके लिए सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक लाइन को याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक लाइन बनानी है, कैसी भी बना सकते हो, सर्कुलर मोशन में आपको एक सर्कल बनाना है, रेक्टिलिनियर मोशन में आपको भी एक लाइन बनानी है, और पीरियोडिक मोशन में आपको कुछ इस तरह से जाना है, हाफ सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है, एक तरह से। तो मैंने ये चीज़ें क्यों बताई, ये चीज़ें आगे आपको काम आएंगी। चलिए देखते हैं कैसे काम आएंगी आगे आपको। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहले पढ़ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है,
if some body is in uniform motion, if it is in uniform motion, then what is going to happen, उसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, that is going to come in a single line, एक लाइन आएगा, लीनियर ग्राफ फॉर्म हो पाएगा उससे. यूजिंग दैट वी कैन फॉर्म लीनियर ग्राफ. व्हाट इज अ लीनियर ग्राफ? ऐसा ग्राफ जो कि एक लाइन में आ जा रहा हो. ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू. आगे वीडियो में एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास आपके ग्राफ के लिए. तो इफ समथिंग इज ट्रैवलिंग, नॉट नेसेसरी दैट इट हैज़ टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ज़रूरी नहीं है. बट इन अ यूनिफॉर्म मोशन व्हाट इज नेसेसरी इज इट हैज़ टू ट्रैवल इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यार देखो, अगर एक एप्पल आपका 2 रुपीज़ का है तो 5 एप्पल्स कितने रुपीज़ के होंगे? ऑफ कोर्स 5 एप्पल्स आर गोइंग टू बी ऑफ 10 रुपीज़. होंगे कि नहीं होंगे? ये है आपका यूनिफॉर्म में. और अगर मैंने बोला कि यार एक एप्पल आपका 2 रुपीज़ का है, लेकिन क्योंकि आप 5 एप्पल्स ले रहे हो तो जो दुकान वाले अंकल है ना वो डिस्काउंट दे रहे हैं, इसीलिए 5 एप्पल्स सिर्फ 8 रुपीज़ के दे रहे हैं. तो ये तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ. ये तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ. ये यूनिफॉर्म कैसे हुआ? ये नॉर्मल जा रहा है. एक लोगे तो 2, 2 लोगे तो 4, 4 लोगे तो 8 और 5 लोगे तो 10. इस साइज प्रिसाइज से जा रहा है, पेस में जा रहा है. लेकिन इसने पेस तोड़ दिया है. ठीक है, ये पेस तोड़ दिया. इसका अगर हम लोग ग्राफ निकालेंगे, चलो एप्पल्स का अगर हम लोग ग्राफ निकाल लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, 1 सेकेंड मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ इंक और आप ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, आप ग्राफ बनाते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं. तो यार ये ग्राफ में हम लोग है ना, सबसे पहले ये कुछ ऐसे बना देंगे. एक लीनियर ग्राफ बनाना है हमको एक लाइन में. तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैंने ये कर दिया. अब मैंने यहाँ पे मैं एप्पल्स के नंबर लिखूँगी. एप्पल्स के नंबर, कितने एप्पल्स लग रहे हैं मेरे को? 2. 1 एप्पल मेरे को कितने का आ रहा है? 2 एप्पल मेरे को कितने का आ रहा है? 3 एप्पल मेरे को कितने का आ रहा है? दैन दैट इन द सेम वे आई हैव टू राइट टिल 5. ठीक है, आई हैव टू राइट टिल 5. मैंने 5 एप्पल्स का यहाँ पे बना दिया. और इस साइड में क्या करने वाली हूँ, इस साइड में मनी लिखूँगी. 2, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ 9, 10. ठीक है, मैंने 10 तक का बना दिया है. अब मैंने एक बार 10 तक का बना दिया. अब मैंने जैसा कि आपको जो स्केल बताया था वो सेम स्केल के हिसाब से हम लोग जाएंगे. तो एक एप्पल कितने रुपीज़ का है? 2 रुपीज़ का. एक एप्पल कितने रुपीज़ का है? 2 रुपीज़ का. अब 2 एप्पल्स कितने रुपीज़ के होंगे? 4 रुपीज़ के होंगे, है ना. 2 एप्पल 4 रुपीज़ के होंगे. 3 एप्पल्स कितने रुपीज़ के होंगे? 3 एप्पल 6 रुपीज़ के होंगे. तो ये भी लाइन में जा रहा है. 4 एप्पल्स कितने रुपीज़ के होंगे? 4 एप्पल्स 8 रुपीज़ के होंगे. ये भी लाइन में जा रहा है, ये भी लाइन में जा रहा है. ठीक है, अब 5 एप्पल्स कितने रुपीज़ के होंगे? तो 5 एप्पल्स क्या बोल रहे हैं अंकल जानते हो कि 5 एप्पल्स ना आपको छूट में दे रहा है. 5 एप्पल्स ही इज़ गिविंग इन डिस्काउंट. कि अगर 5 एप्पल्स लोगे तो मैं आपको 8 रुपीज़ में दे दूँगा, जो कि 4 एप्पल्स की वैल्यू है. तो 8 में टिक करते हैं. हाँ ठीक है. अब गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई. यहाँ पे यार लाइन ब्रेक हो गई. ये ऐसे सिंपल जा रही थी सीधी सीधी, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे मूव हो गई. तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हमारे ग्राफ में. तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, इस चीज़ को बोला जाता है हमारा बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म. अब यार ये नॉन यूनिफॉर्म इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया ताकि आपको याद रहे, आप ये चीज़ भूलो ना. ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है. तो ये सेम यहाँ पे भी है. अब यहाँ पे मैंने एप्पल्स का एग्जांपल दिया. अब यहाँ पे क्या चीज़ का है? मोशन की बात क्यों हुई है, बस इतना ही डिफरेंस है. अगर मोशन की बात क्यों हुई है तो उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं पीपल, एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं जो कि आपने ग्रेड 7 में पढ़ रखा है. तो जैसे देखो, एक कार है जिसने 2 आवर्स में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, 2 आवर्स में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. अब यार उसने 4 आवर्स में 8 किलोमीटर कवर कर लिया. अब उसने 6 आवर्स में 10 किलोमीटर कवर कर लिया. तो अब मुझे बताओ कि ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है कार या नहीं? मुझे ये क्वेश्चन है. इज द कार गोइंग इन यूनिफॉर्म मोशन? तो चलिए ग्राफ बना के इसको समझ लेते हैं. तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे. एकदम बेसिक है ना, एकदम सिंपल है. तो यहाँ पे टाइम लिख देते हैं. हमारा एक्स एक्सिस ये रहा, हमारा वाई एक्सिस ये रहा. यहाँ पे हम लोग टाइम स्टेट करेंगे. ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू स्टेट टाइम वाइल हियर यू आर गोइंग टू स्टेट डिस्टेंस. दैट्स इट. तो यहाँ पे टाइम लिख देते हैं 2 आवर्स, हियर 4 आवर्स, हियर 5, 6 आवर्स. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं. हियर व्हेन वी गो अपॉन डिस्टेंस देन
4 किलोमीटर्स, ठीक है, 4 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स, 9-10 किलोमीटर्स। मैंने बेसिकली ऐसा कुछ ग्राफ में फॉर्म कर दिया है। अब व्हाट आई विल डू इज, यार इन 2 आवर्स इट हैज़ गॉन 4 किलोमीटर, मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगी। 4 आवर्स, इन 4 आवर्स इट हैज़ गॉन 8 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे भी डॉट लगा दूंगी, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट लगा दिया मैंने। Now in 6 hours it has gone 10 kilometers. So what I'm going to do is I'm going to put a dot here for the linear graph. Now guys, just check it out whether it is in a straight line or not. Is this graph in a straight line? Yeah, just look at this. This is in a straight line, of course. So this is a uniform motion, ठीक है. So this is an example of uniform motion. Now when we go reverse, हम लोग है ना एक और स्केल लेके ट्राई करते हैं, ठीक है, एक और यहाँ पे लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रख दिया कि 6 आवर्स में उसने, ओके, सो 6 आवर्स, इन 6 आवर्स इट हैज़ कंप्लीटेड, लेट्स टेक 9 किलोमीटर। 6 आवर्स में अगर उसने 9 किलोमीटर कवर की, ठीक है, तब ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। इफ़ यू वांट टू नो दैट, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू द सेम हियर एज वेल, ठीक है, यहाँ पे भी यार सेम करना है। तो जैसे कि 2 घंटे में कितना कवर करेगा वो जान लिया आप लोगों ने। 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 पे टिक कर दो। अब यार 4 घंटे में कितना कवर करेगा, 4 घंटे पे 8 किलोमीटर, तो 8 पे कर दो यहाँ पे हियर ना। 6 घंटों में इन 6 आवर्स 9 किलोमीटर, सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन 9। सो 9 क्या होगा, 8 और 10 के बीच में होगा कहीं पे 9, यहाँ पे अप्रॉक्स, तो यहाँ पे क्या इस साइड जाएगा, तो इधर आपने डाल दिया अपना डॉट। अब यार अपना डॉट को ना सारे जितने भी आपने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं इनको यू नीड टू ज्वाइन देम टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज यूनिफॉर्म और नॉट। तो यू हैव टू ज्वाइन करा। यहाँ से यार ये टेढ़ा हो गया, मीन्स दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। इफ इट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग मीन्स दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। गाइज आर यू गाइज क्लियर टू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? मैंने आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी सिखा दिया, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को सिखाने के साथ साथ। नाउ गाइज आई होप यू गाइज आर क्लियर टिल हियर। तो सेम ये हो गया आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग सीखते हैं यार यूनिफॉर्म का एक एग्जाम्पल देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के फॉर्म में। सो मैंने तो पहले से ही आपको दिखा दिया था खुद से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के, बट स्टिल यू कैन लुक एट हियर। यहाँ पे जो ग्राफ की लाइन है वो जा रही है एकदम स्ट्रेट जा रही है लाइन, means this is in uniform motion. If the line is going absolutely straight means this is in uniform motion. क्यों straight जा रही है? क्योंकि यार 2 सेकंड में, अच्छा 2 सेकंड में 10 किलोमीटर कवर किया, 4 सेकंड में 20 किलोमीटर कवर किया। नो बहुत फास्ट जा रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट जा रहा है, चलेगा। 30 किलोमीटर्स इट हैज़ कवर्ड इन 6 सेकेंड्स। तो इसी तरह यार ये इस तरह से जा रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलोगे आप? अगर इसको यूनिफॉर्म बोलते तो नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलोगे? तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी देखो यहाँ एग्जाम्पल। तो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ पे देखो। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल, यहाँ पे जो टाइम है वो सेकेंड्स में है। या ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे रखो, देखो 2 सेकेंड्स में इसने 10 किलोमीटर नहीं कवर किया। 2 सेकेंड में दिस हैज़ गॉन, यहाँ से इसने टेढ़ा कवर किया। 4 मिनट्स में अगेन वो टेढ़ा गया, 6 सेकेंड्स में फिर से वो टेढ़ा गया। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट स्ट्रेट, दिस इज़ एब्सोल्युटली कर्व्ड। सो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यार यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो हद से ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो चुका। अब सर्कुलर वर्सेस रेक्टिलिनियर वर्सेस पीरियोडिक क्या होता है? सर्कुलर, रेक्टिलिनियर और पीरियोडिक ये 3 अब पढ़ेंगे। यार सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर मीन्स इन अ सर्कल। अगर कोई चीज़ है वो इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कल दैट विल बी सेड एज अ सर्कुलर, इन अ सर्कुलर मोशन। अ राउंड पाथ हैविंग द शेप ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है। एक राउंड पाथ है, ये देख रहे हो आप। अगर कोई चीज़ है वो सर्कल में मूव कर रही है that will be in a circular motion. Rectilinear means if it is moving in a straight line, अगर वो एक सीधे जा रही है, that will be in a rectilinear motion. If periodic when we say,
Then the best example comes is oscillatory motion. Oscillatory motion, in with that what happens, it is going in this direction, इस तरह से जा रही है, means there is this thing, ठीक है, वो पहले इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी, इस टू एंड फ्रो के मोशन में it is going to move. That's it. Now guys, moving on to the most important topic out of this chapter, that is distance and displacement. सबसे ज़्यादा important हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज आगे के ग्रेड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. दिस इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर योर 9th grade एज वेल. तो व्हाट इज डिस्टेंस? सो डिस्टेंस इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड जो आपको यहाँ पे देखो डिस्टेंस है ना, वो डिपेंड करता है स्पीड पे. गाइस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन स्पीड. अगर स्पीड ज़्यादा होगी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, स्पीड कम होगी कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे. अब यार हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड, कितना रीजन किसी चीज़ ने कवर किया, उसको बोलते हैं डिस्टेंस. वह डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी आपकी आ गई वेलोसिटी की. वेलोसिटी आप आगे के ग्रेड्स में पढ़ने वाले हो, दैट्स वाई आई एम नॉट गोना कंफ्यूज यू राइट नाउ यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्म. ठीक है, तो ये क्या होता है कि हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज, आपसे मतलब वो ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा दूर गई है, ये हो गया आपका मतलब डिस्टेंस. क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाउन. ठीक है, सो दिस इज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी. ठीक है, दिस इज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको टाउन ए से टाउन बी तक जाना है. टाउन ए से टाउन बी तक जाना है और दोनों में जाने का आपको कितना टाइम लगने वाला है, मतलब कितना डिस्टेंस है. अच्छा मान लेते हैं यू आर हैविंग 6 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी, 6 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस. तो आप सीधे सीधे गए तो 6 किलोमीटर आपने कवर किया. 6 किलोमीटर you guys have covered. If you go straight then you are covering 6 kilometers. तो क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी आपका 6 किलोमीटर ही होगा. कितना? अच्छा डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपका 6 किलोमीटर्स है ना. तो यही है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या अलग अलग हो सकते हैं एक ही टाइम पे? तो हाँ हो सकते हैं. अब यार ये जो रोड था ये बंद था, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेट वाला रोड था वो बंद था, तो आप क्या करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गो दिस वे. व्हाट यू विल डू इज यू आर गोइंग टू गो डिफरेंट वे. आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके जाना पड़ेगा. ठीक है, यू गाइज हैव टू गो लिटिल लाइक ऐसे थोड़ा सा मूव करके इस तरह से जाना पड़ेगा, तब आप पहुँचोगे. अब आप ऐसे गए तो ऐसे आप जब गए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको इस रास्ते से कितना डिस्टेंस लगा? लेट्स टेक इट, आपको 12 किलोमीटर्स लग गए. तो 12 किलोमीटर्स यहाँ पे आपका डिस्टेंस होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ का स्ट्रेट पाथ. ठीक है, आई एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने दो एंड देन आई शो इट टू यू गाइज एज वेल. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वहाँ से उस पोर्शन का स्ट्रेट पाथ कुछ इस तरह से स्ट्रेटली, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 6 किलोमीटर्स ही रहेगा. डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बिकम 12 किलोमीटर्स. कितना डिस्प्लेस हुआ है? अभी भी आप 6 किलोमीटर ही डिस्प्लेस हुए, भले पाथ खराब थी. डिस्टेंस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू 12 किलोमीटर्स. वाइल आप डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई साहब? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 किलोमीटर्स सेकेंड वाले केस में. दैट्स इट गाइज, इसमें और कुछ भी नहीं था. तो यार ये पिक्चर के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश करी है. यहाँ देख लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका और ये एंडिंग पॉइंट है. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है. तो आप पूरा ऐसे घूम के आप जा रहे हो, तो ये जाने में आपको जितना भी टाइम लग रहा है, ठीक है, आप जितना भी आप कवर करे वो आपका डिस्टेंस हो गया. आपने कवर कर लिया, लेट्स टेक इट 2 किलोमीटर्स. तो 2 किलोमीटर्स आपका डिस्टेंस है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये घुमा घुमा के नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट यहाँ से उस पाथ तक का जो उस पॉइंट तक का जो सीधा पे है वो होगा जैसे 500. लेट्स टेक इट, ये है आपका 500 मीटर्स. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. दैट्स इट गाइस. अब यार ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा? ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मोशन क्या होता है? दैट वी हैव इन मोशन क्या होता है? वी हैव स्टडीड मोशन एंड रेस्ट. एक चीज़ पढ़ी थी, मोशन व्हेन समथिंग इज मूविंग, रेस्ट व्हेन समथिंग इज नॉट मूविंग. Now there are different
टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ग्राफ पे हम जब उसे शो करते हैं तो स्ट्रेट आता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो टेढ़ा टेढ़ा होता है, ठीक है. नाउ व्हेन वी आर शोइंग इट इन ग्राफ, रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, डिफरेंट से. फिर पीरियोडिक मोशन मीन्स ऑसिलेटरी मोशन. ना पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था. डिस्टेंस मतलब अभी अभी हम लोगों ने समझा क्या डिस्टेंस मतलब होता है आपने कितना ट्रैवल किया, कितना रीजन कवर किया है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि आप जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट. आपको जो डिस्टेंस हो गया वो डिपेंड करता है स्पीड पे, क्या है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हमारा स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है गाइस. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बस इतना ही तो है, दैट्स नथिंग एल्स. नाउ गाइस लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. अब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि पता चले हमने पढ़ा कितना. So first questions in front of you guys on my screens. So find speed when distance. यार you need to find speed when distance is 142 किलोमीटर and time is 2 hours. तो speed का पहले फॉर्मूला क्या था? We have learned through that triangle के थ्रू हमने पढ़ा था कि speed is equal to distance upon time. तो यार यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है. speed is equal to आपका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर्मूला जो कि हो जाएगा आपका distance upon time, ठीक है. अब डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया. डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमारे 142 किलोमीटर. 142 किलोमीटर. टाइम क्या है हमारा 2 आवर्स. अब इनको डिवाइड कर दो तो इनको कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 7 = 14, 2 1 = 2, तो 71 किलोमीटर्स पर आवर हो गया. इतना यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो था, ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो था. तो हम लोगों ने बस सिंपली इसको सॉल्व कर दिया. क्या किया, वी कैलकुलेटेड डिस्टेंस एज 1, मतलब हम लोग को पता था गिवन वॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू 142 किलोमीटर, टाइम वॉज गिवन एज 2 आवर्स. What we did was we took the formula speed is equal to distance upon time and we did 142/2 and 71 km/h was our answer that way. Now second question is, a man runs at a speed of 10 km/h. How much time will he take to cover 750 मीटर. अब यार वो 750 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर वो इस स्पीड से, इफ़ ही इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ 10 km/h, 10 किलोमीटर हर एक घंटे में वो कवर कर रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, तो 750 मीटर्स कितने घंटे में कवर करेगा या फिर कितने टाइम में कवर करेगा, ठीक है. हाउ मच टाइम ही विल टेक. सो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्पीड ऑफ मैन, स्पीड कितनी हमें दी हुई है, 10 km/h की स्पीड दी हुई है. उस स्पीड से वो दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड से दौड़ रहा है, राइट. ना कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, 750 मीटर डिस्टेंस कवर करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 750 मीटर का है वो मीटर्स में, हम लोग को चाहिए किलोमीटर पर आवर के वो में, क्योंकि हमको स्पीड भी उसी फॉर्म में दी हुई है, ठीक है. स्पीड हमको किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर. तो हम लोग डिस्टेंस को भी क्या करेंगे, किलोमीटर में टर्न कर देंगे. तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, डिवीजन करेंगे. तो 750/1000, ठीक है. तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, जो ये 2 zeros हैं वो इस तरह से हो जाएंगे, 0.75 किलोमीटर्स. यार ये सिंपल कन्वर्जन आपको यूज़ करना है. तो 0.75 किलोमीटर कर दिया आपने, एक बार आपने 0.75 किलोमीटर्स कर दिया है. वंस यू गाइस हैव डन द 0.75 किलोमीटर, ठीक है, फिर क्या करना है, टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. तो वो फॉर्मूला लगा दो. तो डिस्टेंस क्या था, 0.75 किलोमीटर, स्पीड क्या था 10 पर, आपका स्पीड यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, उस स्पीड से जा रहे थे. तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.075, ठीक है. आवर्स इतने आवर लगेंगे आपको. कैसे, क्योंकि 0.75 को अगर आप बाई 10 कर रहे हो तो ये जो पॉइंट है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 75/100 into 10. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. फिर इसको कट कर दोगे, 5 2 = 10 से, 5 1 = 5 एंड 5 5 = 25 कट हो गए. अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे, अभी भी ये 100 और 15 दोनों ही चले जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे, है ना. तो फिर सिंप्लीफाई करके आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा, ठीक है. दैट्स इट. Now एक और question in front of you people. So a car travels along a straight road 100 meter east and then
50 meter west. What it is doing is it is traveling 100 meter east. Let's make this. ठीक है, this is north, this is south, this is west, this is east. So first of all, what will the car do? Let me change the color of the pen and then proceed. So first of all, it is going to move in along a straight road only. So 100 meter east, from here 100 meter towards east, and then 50 meter west. Then it is going to come back 50 meters towards west in this way. So now you have to find the distance and displacement of the car. Distance, what will be distance, what will be displacement? Guys, this is a very simple question. ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. What is distance? Distance will be from this entire path will be your distance. This entire path is going to be your distance. तो ये पूरा पाथ कितना है वो आपका डिस्टेंस होगा. तो 100 मीटर ईस्ट, 100 मीटर, ये जो लाइन है ये 100 मीटर्स की है, एंड दिस लाइन इज ऑफ 50 मीटर्स. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू गाइस 100 प्लस 50, that is 150 meters. ठीक है, 150 meters. Isn't it very simple? Distance is equal to 150 meter. Now what is going to be displacement? So displacement is going to be nothing guys, but displacement थोड़ा डिफरेंट होगा डिस्टेंस से. डिस्टेंस से कैसे डिफरेंट होगा ये आप सबको पता ही है जैसा मैंने बताया. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का होगा. तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का कितना है? अब यार 100 में अगर ये पूरी लाइन 100 की थी तो आधी लाइन कितने की होगी? आधी लाइन कितने की होगी? 50 की होगी. 100 का हाफ. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 50 मीटर. हाउ इज इट सो? तो यार 50 मीटर्स ये है, इतनी चली गई 50 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हटा दोगे तो बाकी 50 मीटर रहेगी, है ना. या फिर एक और, ये एक सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50, दैट इज गोइंग टू बी गाइस 50. दैट इज गोइंग टू बी 50 मीटर्स. तो डिस्टेंस क्या हो गया? 150 मीटर. वेल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 50 मीटर. राइट, एकदम सिंपल था एकदम सिंपल से आंसर्स थे गाइस. आई होप ये सारे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इजी थे कि आपको सबसे समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस में करके. तो डिस्टेंस क्या हो गया? 100 मीटर्स प्लस 50 मीटर जो कि 150 मीटर्स हो जाएंगे. डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर माइनस 50 मीटर था. क्यों? क्योंकि आज जो इतना था इसमें से हाफ वो वापस आ गया था, आधी पॉइंट वो वापस आ गई थी. तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? माइनस में जाएगी. तो इसीलिए दिस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए क्या करोगे उसमें आप डायरेक्शन को इंडिकेट करोगे. गाइस, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन. जैसे क्योंकि सेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन से सॉल्व किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना सीखा, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फुल 2 वी हैव डन अ लॉट ऑफ with a lot of fun. We have completed the entire session. Thank you guys for being till the end of the session. If you still have any questions related, you can write me those in the doubt solving form linked in description, because chapter थोड़ा सा था टफ. अगर आप लोग को लगा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउट सॉल्विंग फॉर्म का लिंक होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट मी डाउन. एंड दैट्स इट अबाउट द सेशन. सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय. सी यू ऑल.